Hello dear students, we are continuing with similarity here. Okay, similarity. So just some questions are there, we'll go through them. The first one, ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. With AB parallel to DC, E and F are the points on the non-parallel sides. E and F are points on the non-parallel sides. AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB, and show that AE upon ED equals to BF upon FC. We need to show that AE upon ED equals to BF upon FC. This we need to show. So just see, the figure is there. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. ये given है. AB जो है वो DC के parallel given है. ठीक है. हमें प्रूफ क्या करना है? AE upon ED. AE upon ED. AE upon ED equals to BF upon FC. ये प्रूफ करना है. AE upon ED BF upon FC. तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं? एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. We join AC intersecting EF at G. We join AC intersecting EF at G. ये जो खींच दिया. ओके, EF को इंटरसेक्ट करते हुए AC को ज्वाइन कर दिया. ठीक है. तो जस्ट सी, प्रूफ ले रहे हैं. EF इज पैरेलल टू AB. EF क्या है? गिवन है ना. किसके पैरेलल है? EF इज पैरेलल टू AB एंड AB इज पैरेलल टू DC. क्वेश्चन है ना, ABCD इज अ ट्रेपेजियम. AB तो DC के पैरेलल गिवन ही है. AB इज पैरेलल टू DC. E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स. E किस पे पॉइंट है आपका? नॉन पैरेलल साइड AD पे. और F किस पे है? BC पे. ठीक. E and F are the points on the non-parallel sides. Okay, AD and BC respectively. और such that EF जो है वो AB के पैरेलल है. EF किसके पैरेलल गिवन है? AB के. भाई जब EF AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है तो EF भी DC के पैरेलल हो जाएगा. ओके, तो जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन. प्रूफ, EF पैरेलल टू AB and AB पैरेलल टू DC. Thus EF parallel to DC. मतलब these three lines are parallel to each other. तो just see, in triangle ADC, ADC ये ट्राइंगल है. और क्या गिवन है? इन ट्राइंगल ADC EG जो है वो DC के पैरेलल है. EG is parallel to DC. In triangle ADC EG is parallel to DC. So AE upon ED equals to AG upon GC. AE upon ED equals to AG upon GC. Okay, this is by basic proportionality theorem. Similarly in triangle CAB, so this is there na, AE upon ED, AG upon GC. Similarly in triangle CAB में just see, CAB is a triangle. CAB parallel क्या है बेटा? GF is parallel to AB. GF is parallel to AB. तो just see what? AG upon GC. AG upon GC is equal to BF upon FC. How it is? Because converts GC upon AG. GC upon AG. GC upon AG is equal to CF upon FB. तो इसको हमने क्या किया? रेसिप्रोकेट कर दिया. GC upon AG FC upon BF के इक्वल था. रेसिप्रोकेट कर दिया. AG upon GC BF upon FC. ये दोनों इक्वल हो गए. तो जस्ट सी, AE अपॉन ED और AG अपॉन GC के इक्वल है. इधर AG अपॉन GC BF अपॉन FC के इक्वल है. तो AG अपॉन GC इधर भी है, AG अपॉन GC इधर भी है. तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए ना. AE अपॉन ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से AE अपॉन ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC. दिस इज व्हाट एक्चुअली वी नीड टू प्रूव. Just see another one. Here ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. AB किसके पैरेलल गिवन है? DC के. ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at O. ठीक है, diagonals एक दूसरे को intersect करते हैं O पे. गिवन है. Prove that AO upon OC. Prove that AO upon OC. AO upon OC is equal to BO upon OD. ये प्रूव करना है. AO upon OC equals to BO upon OD. ठीक. AO upon OC BO upon OD. O से क्या किया? इन दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की. O से we draw EO parallel to AB. We draw EO parallel to
ए बी मीटिंग ए डी एट ई, मीटिंग ए डी एट ई, इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया। तो जस्ट सी, क्वाइट सिंपल। एक ट्राइंगल है हमारे पास ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी बाई बेस, ठीक है। इन ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी, नाउ जस्ट व्हाट, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी रेसिप्रोकेट करके ले रहे हैं, ठीक है। एंड देन ए ई अपॉन ई डी एंड बी ओ अपॉन ओ डी, triangle DAB, the triangle DAB, just see, concentrate on it. AE upon ED is equal to BO upon OD. AE upon ED equals to BO upon OD. How it is? Because ये triangle given है ना, इस triangle में क्या हो जाता है भाई, just see, DE upon EA equals to DO upon OB, ED upon EA equals to OD upon OB या BO, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, रेसिप्रोकेट किया तो जस्ट सी, बी ओ अपॉन ओ डी नीचे हो गया इधर, और इधर ई डी अपॉन ए तो ए ऊपर आ गया, ई डी यहाँ से, तो दो इक्वेशंस मिल गई। मतलब ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी और ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी। ओके, यहाँ देखिए एल एच एस दोनों के सेम है, तो ए ओ अपॉन ओ सी बी ओ अपॉन ओ डी के इक्वल हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी बी ओ अपॉन ओ डी के इक्वल हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, ए ओ अपॉन ओ सी बी ओ अपॉन ओ डी, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी। किया क्या, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की, यहाँ से इसको ले लिया एक बार, क्या इसी ट्राइंगल में एक बार क्या लिया यहाँ से, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी। फिर इस वाले ट्राइंगल में यहाँ से देखिए ना, ए ओ अपॉन ओ सी पे ले लिया, ए ओ अपॉन ओ सी, और इस वाले ट्राइंगल में ए ई अपॉन ई डी और एक बार बी ओ अपॉन ओ डी ले लिया, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाएगा, मतलब ए ई अपॉन ई डी बी ओ अपॉन ओ डी और एक बार ए ई अपॉन ई डी ए ओ अपॉन ए सी, दोनों ये इक्वेट कर दिए, ए ओ अपॉन ओ सी बी ओ अपॉन ओ डी, सो ए ओ अपॉन ओ सी बी ओ अपॉन ओ डी। ओके, just see the question. The diagonals of a quadrilateral ABCD, diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O, intersect each other at the point O such that AO upon OC, such that AO upon OC equals to BO upon OD। मतलब गिवन है AO upon OC is equal to BO upon OD, यही तो भी प्रूफ किया था, AO upon OC BO upon OD तो ट्रेपेजियम ही होता है। शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में प्रूफ करके आए तो उसका कन्वर्स है। तो टू प्रूव ABCD इज अ ट्रेपेजियम, क्या प्रूव करना होता है कि हमें प्रूव करना पड़ेगा कि लाइंस पैरेलल हैं, AB और DC पैरेलल हैं। तो वी ड्रॉ अ लाइन EO पैरेलल टू DC, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, कंस्ट्रक्शन मीटिंग AD at E। तो यहाँ से देखिए ना आंसर, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD जस्ट सी ACD AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इज इक्वल टू AE अपॉन ED। ओके, जस्ट सी ना, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इन ट्राइंगल ACD AO अपॉन OC इक्वल्स टू AE अपॉन ED। ओके, बट AO अपॉन OC BO अपॉन OD के गिवन है, तो AO अपॉन OC BO अपॉन OD के गिवन है, तो BO अपॉन OD किसके इक्वल हो गया, AE अपॉन ED के। क्यों, क्योंकि AO अपॉन OC BO अपॉन OD के इक्वल है और AO अपॉन OC AE अपॉन ED के इक्वल है, तो BO अपॉन OD इक्वल्स टू AE अपॉन ED। इन ट्राइंगल DAB BO अपॉन OD, जस्ट सी BO अपॉन OD, BO अपॉन OD, और here it is AE अपॉन ED, AE अपॉन ED। तो ट्राइंगल कौन सा आ रहा है, BO अपॉन OD और AE अपॉन ED। इसमें ट्राइंगल हमारा कौन सा आ रहा है, DAB, ये पूरा ट्राइंगल आ रहा है। तो जस्ट सी, जब ये हमारी साइड्स कैसी हैं, मतलब ये सेगमेंट्स हमारे प्रोपोर्शनल है ना, सो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम EO इज पैरेलल टू AB, EO इज पैरेलल टू AB, इसको इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया था, EO पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया था DC के, और ये हमें यह हो गई इसके पैरेलल प्रूव हो गई। तो क्या हुआ, ये लाइन जब इसके पैरेलल है, ये लाइन जब इसके पैरेलल है, तो AB हमारी DC के पैरेलल हो गई। तो EO पैरेलल टू AB बट EO पैरेलल टू DC, EO पैरेलल टू DC, हेंस AB is parallel to DC. Okay. The question is in the given figure ABCD, in the given figure ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, AB is parallel to DC and its diagonal intersect at O. Clear है, AB is parallel to DC, diagonal intersect at O.
वैल्यूज गिवन है, AO 3x माइनस 1, AO 3x माइनस 1, OC 5x माइनस 3, OC 5x माइनस 3, BO 2x प्लस 1, NOD 6x माइनस 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अच्छा, अब वी नो वन थिंग, इन अ ट्रेपीजियम जो डायगनल्स जब जहाँ जिस पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से क्या हो जाएगा, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC is equal to BO upon OD. This we know now. AO upon OC equals to BO upon OD. This we have proved ना. तो AO upon OC equals to BO upon OD. तो we can use it directly in the question. तो just AO upon OC BO upon OD के इक्वल हो गया. AO की वैल्यू 3x माइनस 1 है, OC की वैल्यू 5x माइनस 3 है. BO is 2x प्लस 1, OD is 6x माइनस 5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस 1 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 5x माइनस 3. मल्टीप्लाई करिए, 18x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 5 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3. तो व्हाट टू डू विद इट, 8x स्क्वायर आफ्टर सिंप्लीफाइंग विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 इक्वल्स टू 0. ओके, जस्ट सी नाउ इट इज 2x square reduced to 2x square minus 5x plus 2 equals to 0. After factorization, simplification, x minus 2 to x minus 1 equals to 0. We get the two values of x, x2 है और x 1/2 है. लेकिन 1/2 जरा चेक कर लेते हैं OC के लिए. 1/2 when we'll put in OC, OC कितना है 5x minus 3. इसमें रखेंगे तो 5 into 1/2 minus 3 it is minus 1/2. But we know that distance cannot be negative. A side or distance cannot be negative. तो x हमारा 1/2 के इक्वल नहीं होगा. Hence x equals to 2. तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या था, एक ट्रेपीजियम गिवन है, ठीक है, उनके पार्ट्स की वैल्यू गिवन थी x के टर्म्स में और मैं x की वैल्यू निकालनी थी. बस यूज क्या करना था कि AO अपॉन OC शुड बी इक्वल टू BO अपॉन OD. ओके, AO अपॉन OC BO अपॉन OD के इक्वल हुआ, वैल्यूज पुटअप कर दी और वी गॉट द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू 2. 1/2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि OC माइनस में आ रहा है. Okay, just see. Prove that the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle. Prove that the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. Prove that line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle. Joining any two sides of a triangle is parallel to the third side. मतलब यही है, ABC इज द ट्राइंगल और D और E क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, मतलब AD DB के इक्वल है, AE EC के इक्वल है. तो प्रूफ क्या करना है कि DE जो होगा वो BC के पैरेलल होगा. वेरी सिंपल. D इन E आर द मिड पॉइंट्स, तो AD DB के इक्वल है, AE EC के इक्वल है, मतलब AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल हो गया. क्यों, ये भी 1 है और ये भी 1 है. भाई इन दोनों का रेशियो जब ये दोनों इक्वल हैं AD अपॉन DB, तो AD अपॉन DB 1, AE अपॉन EC 1, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए. AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ईच इक्वल्स टू 1. हेंस बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स BPT क्या है, अगर हमारी ये प्रोपोर्शन है सेम रेशियो में है तो क्या हो जाएगा, DE इज पैरेलल टू BC. भाई AE अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, देन बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC. यही तो प्रूव करना था. जस्ट सी वन मोर. प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side. मतलब AB का midpoint D, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसके पैरेलल, BC के. ABC is a triangle, D is the midpoint of side AB. We draw a line parallel to BC. Okay. The question is prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. मतलब अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है, इट इज़ अ ट्राइंगल, देन D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. इफ अ लाइन इज ड्रॉन DE इज ड्रॉन, ओके, पैरेलल टू BC, देन थ्योरम इज, क्वेश्चन इज इट विल बाइसेक्ट AC. मतलब टू प्रूव होगा AE EC के इक्वल है. वी नीड टू प्रूव AE इक्वल्स टू AC. इफ अ लाइन इज ड्रॉन from the midpoint of one side of a triangle, it is D, parallel to another side, it will bisect the third side. A equals to EC, A equals to EC. This is what we need to prove. Since D is parallel to BC, D is parallel to BC, basic proportionality theorem से क्या हो जाएगा, AD upon DB AE upon EC के इक्वल हो जाएगा. Okay, so just see AD upon DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC. लेकिन ये क्या है, ये तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि AD और DB इक्वल है, तो आपस में कट के ये 1, तो AE अपॉन EC इक्वल्स टू 1. AE अपॉन EC किसके इक्वल हो गया, 1 के. देन AE अपॉन EC इक्वल्स टू 1, तो AE इक्वल्स टू EC, A इक्वल्स टू EC. यही तो प्रूव करना था.
Okay, just see one more question. In triangle ABC, AD is a trapezoid. In triangle ABC, AD is a median and E is the midpoint of AD. In triangle ABC, E is the midpoint of AD. E क्या है? Midpoint of AD. E is the midpoint of AD. Okay. If BE is produced, BE को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है. It meets AC in F. Show that AF is 1/3 AC. Okay. AF is 1/3 AC. कंडीशन क्या है? AD क्या गिवन है? मीडियन गिवन है. तो मीडियन का मतलब D क्या हुआ? BC का मिड पॉइंट है. ओके. और ये क्या बता दिया? AD का मिड पॉइंट E है और इसको अगर प्रोड्यूस करें तो ये F पे कहीं पर मिल रही है. ठीक. हमें ये प्रूव करना है कि जो AF है, AF is equal to 1/3 AC. AF equals to 1/3 AC. This we need to prove. AF equals to 1/3 AC. Okay. From D we draw DG parallel to, यहाँ से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं. दिस इज द कंस्ट्रक्शन. EF के पैरेलल यहाँ से एक DG लाइन हमने ड्रॉ की. वी ड्रॉ DG पैरेलल टू EF. यहाँ से ड्रॉ कर दी. ओके. G इज द मिड पॉइंट ऑफ CF. ओके. CF का मिड पॉइंट हो जाएगा. क्यों? इन ट्राइंगल व्हेन वी सी इन ट्राइंगल BFC में ले रहे हैं. अ लाइन ड्रॉन, अभी तो प्रूफ किया था ना. A line drawn from the midpoint and parallel to third side bisect the third side. A line drawn from the midpoint parallel to another side, okay, it will bisect the third side. मतलब अगर हमने DG parallel draw की है कहाँ से? midpoint से, तो ये G point क्या बन जाएगा? FC का midpoint. मतलब FG हमारा GC के equal होगा. तो G is the midpoint of CF, then FG equals to GC. In triangle ADG, just see, in triangle ADG. Again, E is the midpoint ना. E is the midpoint and EF is what? EF is parallel to DG and midpoint से parallel line draw की जा रही है तो वो AG को bisect करेगा. यही तो थ्योरम थी. If a line is drawn from the midpoint of one side parallel to another side, it will bisect the third side. मतलब AF equals to FG. तो यहाँ से क्या मिल गया? AF equals to FG मिल गया. ठीक. ए क्या मिला था? FG इक्वल्स टू GC. FG GC के इक्वल था, AF FG के इक्वल हो गया. दोनों को कंबाइन कर दिया. फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस वी कैन सी AF इक्वल्स टू FG इक्वल्स टू GC. AF इक्वल्स टू FG इक्वल्स टू GC. तो AC क्या है? AF प्लस FG प्लस GC. AC इज व्हाट? AF प्लस FG प्लस GC. AC इज व्हाट? AF प्लस FG प्लस GC. AF प्लस FG प्लस GC. तो AC ये हो गया. यानी कि कितना हो गया? 3AF. यही लाना था. तीनों इक्वल है, किसी के भी टर्म में लिख दीजिए, लेकिन AF प्रूव करना था हमें, तो AF के टर्म्स में लिख लेंगे. AC इक्वल्स टू AF प्लस FG प्लस GC. हेंस इट इज इक्वल टू 3AF. तो thus we can say what? AF equals to 1/3 AC. Okay, AF equals to 1/3 AC and this is what we need to prove. Okay, that is all.